Assalamu alaikum. This is Dr. Farah Shamim, and you are watching Canadian Mosaic. In this series of this program, we will cover Mississauga's two by-elections, which are going to be held on June the 10th. The first by-election is of Mississauga's mayor, the seat which was vacant by following the resignation of Bonnie Crombie, who is the provincial leader of Liberals right now. The second by-elections, which are going to take place on June the 10th, they are for the Ward 5 councillor position. And that is vacant because Caroline Parrish, who was the councillor, she resigned to run for the mayor position. In the first program of this series, I'm delighted to welcome Manish Sani, who is one of the 15 candidates for the councillor position for Ward 5. Thank you so much for having me here today. मैं Manish Sani, मैं Ward 5 से City Council के लिए I'm applying for the job. I always call it not an election, but applying for the job because public service is definitely a job. क्योंकि basically जितने आप लोग हो, हम सब हैं, हम taxpayers हैं. तो जो हमें सर्व करते हैं वो हमारे बॉसेस होते हैं. तो आई एम रनिंग फॉर वार्ड 5. मैं ओरिजिनली मिसिसागा से ही हूँ. आई मीन पैदाइश मेरी यहाँ पे कनाडा में हुई थी, बट अल्बर्टा एडमिंटन में. और फिर उसके बाद मेरा हाई स्कूल मैं एडमिंटन में था अप टिल जूनियर हाई स्कूल. फिर मेरा हाई स्कूल इंडिया में हुआ इन न्यू दिल्ली. और उसके बाद फिर मैं वापस कॉलेज के लिए कनाडा आया. फिर जैसे लाइफ होती है कॉलेज के बाद, you go back and work and you start your life and then बस फिर लाइफ शुरू करी. And then I moved to Mississauga after that around in 97, 98. Okay. Long time ago. Long time ago. And then just started the life like a regular Canadian here. दो तीन नौकरियां करो और mortgage दो, credit card bills दो. आप हम सब के challenges को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. That's good. जी, मेरे को उन challenges को of course face करने का मौका मिला. और इंडिया में जो मैं बड़ा हुआ, वो जो होते हैं from the age of 13 till about 17, जो from a boy when you kind of turn into the man, वो मेरा इंडिया में हुआ. और दिल्ली जैसे शहर में हुआ, which is a vast experience in itself. And so I got a lot of confidence in that time. एक confidence ना naturally आ गया, क्योंकि जब आप पैदा एक country में हुए हो और आपकी एक upbringing in Canada is very different from it is back home in India or Pakistan if it may be. So it's a very different world for you. But मेरे लिए वो जो दुनिया इंडिया की थी, it was a very happy world. It was a very pride place world, and I learned a lot about love for your country and sentiments, emotions, जो patriotism होता है, वो मैंने इंडिया में काफी देखा. Because इंडिया चाहे हो चाहे पाकिस्तान हो, मैंने ये देखा कि वो एक झंडे की जो वैल्यू होती है वो गिरने नहीं देंगे. और अपना and supporting the communities and serving them. Exactly. And then क्या होता था कि in Canada, the one thing even growing up here, I learned that चलो you might know your right next door neighbor, but चार घरों के आगे जाके कौन है आप नहीं जानते. कॉन्डोज में हम यहाँ रहते हैं, कॉन्डोज इतने नजदीक होते हैं एक दूसरे के और एक हॉलवे में, पर लोग ये नहीं जानते कि उनके नेबर इधर या उधर कौन रहता है. तो वो कनाडा का एटमॉस्फेयर था, और इंडिया का एटमॉस्फेयर और पाकिस्तान का अपना जो एटमॉस्फेयर है, वो तो मतलब मॉडल इधर आ जाता है. Exactly. So I got that nice blend and understanding of community by growing up in India. तो उससे बस फिर उसके बाद तो लाइफ नॉर्मल, काम किया, बिजनेस था मेरा, गारमेंट बिजनेसमैन था मैं थोड़े टाइम के लिए. और फिर गारमेंट बिजनेस से मेरी फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस में थी अल्बर्टा में, जो हमने फिर यूएस शिफ्ट कर दिया. और फिर 2018 में मैं उससे पहले एरिज़ोना में था. मैं 2018 में यहाँ वापस टोरंटो मिसागा आया. और मेरे को पॉलिटिक्स का पहला, जो कहते हैं पहला नहीं, उससे पहले मैंने 2 कैंपेन्स एज ए कैंपेन मैनेजर चलाई थी. पर जो जहां पे मैं आज हूं आपके साथ, जिस वजह से बैठा हूं, वो 2018 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी. मैं एमपीपी नीना टेंगरी, जो मिनिस्टर नीना टेंगरी हैं, उनका कैंपेन मैनेजर था मिसिसागा स्ट्रीट्सविल से. और वहां से
मेरी जर्नी शुरू हुई कि हमने वो कैंपेन चलाई और बहुत सक्सेसफुली वो उसको एग्जीक्यूट किया और we had a win, we had a very big win. Minister Tangri, MP Panina Tangri won with the largest margin in the region of Peel. Wow. And, you know, it was a very large celebration and a big victory for everybody. Yeah. You know, and your contribution, you must be cherishing your contribution in it, right? I loved it. The experience is what I think वो कहते हैं ना वो एक नशा चढ़ जाता है. सही. तो एक बार आपने वो नशा कर लिया लोगों की हेल्प करना और एक you know एक ग्रेटिट्यूड को रिस्पॉन्ड करने का वो जो एक जैसे चस्का कहते लग जाता है ना तो एक बार वो लग जाता है तो देन यू वांट टू कंटिन्यू तो फिर उसके बाद मैं एमपीपी टैंगरी के साथ काम किया उनके ऑफिस में एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उनके ऑफिस को मैनेज करता था उनके साथ और फिर उसके बाद फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कंज्यूमर सर्विसेज में चला गया मेरा मिनिस्टर बिल वॉकर थे वहाँ पे उस टाइम पे उनके साथ मैंने काम किया एज ए मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस एंड स्टेक होल्डर रिलेशंस फिर उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में गया गवर्नमेंट में मैं वहाँ पे मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस फॉर मिनिस्टर बिल वॉकर और साथ में टॉड स्मिथ और ग्रेग रिकफोर्ड 3 मिनिस्टर्स के साथ में इकट्ठा में काम करता था उस टाइम पे और फिर उसके बाद एक मिनिस्टर लीसा थॉमसन के साथ काम किया और फिर फाइनल अभी जहाँ मैं हूँ वो है मिनिस्टर रेमंड चो मिनिस्ट्री ऑफ सीनियर्स एंड एक्सेसिबिलिटी तो वहाँ पे मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स और ऑपरेशंस काम करता हूँ मैं उनके साथ अभी पिछले 3 साल से हूँ ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के साथ मैं पिछले 6 साल से हूँ तो पिछले 6 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं अलग एरियाज में मेरे को मौका मिला और अब मैं सीनियर्स के साथ काम करता हूँ नहीं तो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी सर्विस देते रहे हैं फॉर लास्ट 6 years यू हैव बीन यू नो वर्किंग इन द सर्विस इन द पब्लिक सर्विस सेक्टर so why politics then? You were not satisfied the work you were doing or like what is more charming in this side? I think क्या होता है कि एक टाइम आता है मेरे आई होप सबकी लाइफ में ऐसा आए जब उनको लगता है कि उनको ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया लाइक यू नो यू हैव योर फुलफिलमेंट कि मेरे पास अब सब कुछ है अब मैं क्या करूं और क्या होता है कि जब आपको ऊपर वाले पे आपको विश्वास होता है यू हैव फेथ इन यू वेदर बी एनी काइंड ऑफ फेथ एनी रिलीजन इन एनी सेक्टर पर जब आपको फेथ होता है और उस फेथ के साथ आपको जब एक वो फुलफिलमेंट मिल जाए तो आप कहते हो मैं इस फेथ को शुक्राना कैसे करूं इसको वापस कैसे दूं एंड तो उस टाइम पे आई फेल्ट दैट द ओनली वे आई फील आई कैन repay you know our universe God is by giving back to everyone मैं अपना टाइम दे सकूं क्योंकि टाइम वो चीज है जो इस वर्ल्ड पे हमारे पास कभी बहुत ज्यादा भी है और लिमिटेड भी है बट इट्स एक्सट्रीमली प्रेशियस So I thought that if I can give my time, because in the past मेरी लाइफ में जब भी मेरे को मौका मिला किसी की हेल्प करने का मैंने किया because not कि उससे क्या मुझे फायदा होगा नुकसान होगा बट एक मेरे लिए कॉमन सेंस सिंपल सी बात थी कि अगर आप गिरे हो तो मेरा काम अगर मैं हूं तो मेरा काम है आपको उठाना वेरी सिंपल इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी तो आई प्रीटी मच लिव्ड माय लाइफ दैट वे और फिर जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आई एज एन एमपी और एमपीपी और जो फेडरल और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में जिसमें मैंने एज ए कैंपेन मैनेजर काम किया और फिजिकली भी काम किया इन लोगों की ऑब्वियसली जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत टफ और बहुत हाई होती हैं it's an extremely thankless job yeah of course it's an extremely thankless job and although you try to help people but still people have their own concerns and this is my basically next question what kinds of challenges you are foreseeing in this role if you win the elections so kya hota hai ki the beautiful role as a counselor is कि you are not there as a politician. You are there as actually a soldier. Right. Your soul, yes, right? Which means कि आप जो आपके constituents हैं, जो लोग रहते हैं आपके एरिया में, चाहे वो लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो या एनडीपी हो या ग्रीन पार्टी के हो या वोट ना करते हो, पॉलिटिकल हो ना हो, किसी फेथ के हो, किसी रिलीजन के हो, किसी कास्ट के हो, उनकी प्रेफरेंसेस लाइफ की जो भी हो, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उनसे कोई चॉइस नहीं लेनी मुझे सिर्फ कि आपको मेरी जरूरत है इस चीज के लिए इस सेवा के लिए मैं आपके साथ डायरेक्ट
डील कर सकता हूँ, कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की, और डायरेक्ट कर सकते। उसमें कोई वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें ये नहीं है कि पार्टी के लोगों ने डिसाइड किया कि हमने ऐसे जाना है, पर आपके लोग जो हैं वो कह रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स एक्चुअल होती है वो मेजोरिटी पे डिसाइड होती है। अब ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो सिटी काउंसलर का और उनके लोगों के साथ होता है वो पॉलिटिकल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई पार्टी नहीं है जिसको डोनेशन देना है, इसमें इन्फ्लुएंस इकट्ठे लोगों का करके एक तरफ अपना जो रास्ता निकलवाना है, वो वाला सिस्टम है ही नहीं इसमें। और इसलिए मेरे को पॉलिटिक्स में अगर ऊपर वाले ने मेरे को मौका दिया पैर रखने का, तो वो आई एम ग्लैड इज इन द जोन ऑफ अ सिटी काउंसलर, सिंपली बिकॉज मैंने लाइफ में अगर नौकरी करी है, ऊपर वाले की देन है कि मैंने अगर लाइफ में, ये मेरी दूसरी नौकरी है गवर्नमेंट की, इससे पहले सिर्फ अपना बिजनेस या फैमिली के बिजनेस में काम किया, तो आई हैव ऑलवेज आंसर्ड डायरेक्टली टू द बॉस, आई हैव नेवर, और आई हैव बीन द बॉस, I've never had to deal with middlemen. Right. So this is that job. Yeah. Where you're my boss and I get to deal directly with you. There's no middleman. There's no party. There's no agenda. अब लेकिन इसका ये भी है कि आप किसी पे इल्जाम भी नहीं दे सकते ना, कि नहीं वो उसकी वजह से रह गया वरना मेरा तो इंटेंशन थी। Now you are responsible, you are accountable as well. Yes. Right? Which is the best part. Right. देखिए, क्योंकि at the end of the day मुझे पता है मेरी बाजुओं का जोर कितना है जी, और मुझे पता है मैं कितना उठा सकता हूँ। तो अगर मैं अपने आप के साथ अगर ऐसी बेवकूफी करूं कि मैं कहूं कि मैं ज्यादा उठा सकता हूं, तो इसमें नुकसान मेरा तो होगा ही होगा, बट जो पब्लिक बेचारी उनका ज्यादा होगा, तो देन व्हाई डू दैट? बिकॉज क्या होता है इसमें इन द सिटी काउंसिल पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट। ओके, you can't, there's no place to hide, because it's just like I said, it's with the people, right, in front of the people, and the service will be seen very quickly whether you are serving them or not. क्योंकि काउंसलर के ऑफिस में आपका चीफ ऑफ स्टाफ नहीं होता, आपका डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी नहीं होता, आपका 5-6 आपका 8-10 स्टाफ नहीं होता, आप होते हो, आपका मे बी एक और असिस्टेंट होता है या दो एक और जूनियर, दैट्स इट। तो मतलब अगर लोगों ने बात करनी है तो उनको डायरेक्टली मुझसे बात करनी पड़ेगी। एंड आई लव दैट। देखिए, अगर मैंने एक कमिटमेंट की है तो मेरे हाथ में अगर उसको फुलफिल करना है और किसी ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। दैट्स द इजीएस्ट, दैट्स द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन। सो दैट ब्रॉट मी इनटू सिटी पॉलिटिक्स। वंडरफुल। सो इट्स अ पैशन फॉर सर्विस, आई गेस दैट्स व्हाट आई सी इन यू, कि भाई आपको सर्विस करने का, आप लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सारा दे दिया, अब इट्स टाइम टू गिव बैक। तो आपको लगता है कि ये दिस इज द राइट वे टू गिव बैक, दिस वर्क्स फॉर यू, राइट? आपको ऐसे लगता है। चलिए हम और भी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि आप वार्ड 5 से आपने अपने पेपर्स वगैरह नॉमिनेशन के सबमिट कराए हैं, तो वार्ड 5 का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दे दें, लोकेशन वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, एटसेट्रा, एनीथिंग। तो वार्ड 5 का जो आई गेस क्राउन जूल इसे कह सकते हैं, वो है हमारा पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली बीच में आपके बैठेगा, और इसकी बाउंड्री पड़ती है एग्लिंगटन और मेविस से लेके क्रेडिट व्यू रिवर तक 407 से ये जाएगी आपका ईस्ट, और फिर आपका फिंच 427 फिंच और एग्लिंगटन पे कटेगी। तो इट्स अ वेरी बिग वार्ड, इट्स ह्यूज, इट्स द लार्जेस्ट वार्ड इन मिसिसागा, द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड बट डेंसली। तो इसके 2 कोने हैं। ये एक छोटा सा वार्ड 5 का, जब अगर कोई मैप अगर आपके पास टाइम हो जरूर देखिएगा, कि वार्ड 5 जो है इट लुक्स लाइक अ लिटिल कंट्री मैप। तो बीच में सारा इंडस्ट्रियल है, और एक कोने में आपका मॉल्टन है, और एक कोने में आपका ब्रिटानिया वुड, मिसिसागा के एरिया। और ये दोनों जोन्स दे आर अबाउट 20-25 मिनट्स अवे फ्रॉम ईच अदर ड्राइव वाइज। आप एक में जाओगे और आप दूसरे में एक ही दिन पे जाओगे, आपको लगेगा आप 2 अलग देशों में हो, इतना फर्क है। इन द सेंस, अभी रिसेंटली हम डोर नॉकिंग कर रहे थे, अभी इस लास्ट वीकेंड, तो मेरे साथ मेरा वॉलंटियर राघव काम कर रहा था। वो नया आया इंडिया से, इज अ स्टूडेंट एंड he's a family friend also, तो कुछ मैंने कहा करना है तो चला जा, मेरे साथ लग जाए, it'll be good for you. So he came with me। तो हमने मॉल्टन में, सुबह हमने मॉल्टन के एरिया में डोर नॉकिंग करी। मॉल्टन में मॉर्निंग स्टार का एरिया था, तो हमने एयरपोर्ट से मॉर्निंग स्टार पे हमने डोर नॉकिंग सबसे मिले, और वहां पे सड़कों पे लोग चल रहे हैं, चहल पहल है, there's a lot of like noise. It felt very just a mini India-ish kind of feeling, like a very comfortable, like हमारा जैसे होता है comfortable feeling। तो वो थी, तो हमने वहां डोर नॉकिंग करी, तो उसने भी करी, मैंने भी करी। फिर उसके बाद हमने वहां से 4 बजे नहीं 2 बजे निकले, हम दूसरी साइड ब्रिटानिया वुड वाली साइड पे आ गए, और वहां पे हमने एक एरिया में डोर नॉकिंग करी, हाईवे 10 सेरेमोनियल के पास। वो तो राघव मेरे को कहता है, यहाँ इतनी शांति है,
ओके क्योंकि मॉल्टन में चहल पहल, मतलब लोग चल रहे हैं, मेन स्ट्रीट भी थी, गाड़ियां भी चल रही अच्छा हैं, लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ लोग क्योंकि रिलेटिवली कम हाँ, क्योंकि सामने गुरुद्वारा भी था, तो देयर वाज अ लॉट। इस तरफ हमारे कहता है इतना साइलेंस, कहता है कितना फर्क है, एक ही मतलब ये नहीं कि आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने से आ रहे हो, ये एक वार्ड है, एक वार्ड के अंदर इतना फर्क है। और फर्क सिर्फ आपका एक ये चहल पहल का नहीं है, फर्क आपके विजुअल का भी है, क्लेanलीनेस का भी है। मॉल्टन बेचारे को ऐसे पीछे छोड़ा हुआ है, मतलब कि you literally, I would love to show the viewers some pictures at one point. If you go to my website, you'll see some stuff. But you'll see what a difference between Malton side and the Britannia Wood side there is. तो Malton जो है एयरपोर्ट के ज्यादा नजदीक है। मॉल्टन काफी पुराना भी है, काफी जो नए कनाडा में सेटलर्स आए थे, जो पुराने इमिग्रेंट्स भी थे, from Italians to Jamaicans to Indians, they've all lived there. Okay, So Malton has a side. very interesting story, dense area, but neglected as well. Yes, yes. Though I have to give credit, it has gotten better over time, I'm sure, from what I've seen. क्योंकि अब मैं क्योंकि वहाँ पे डोर नॉकिंग कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं फैसिलिटीज देख रहा हूँ, पिछले 6-8 महीने से वॉलंटियर करता हूँ मॉल्टन में। मैं हर हफ्ते एक फूड बैंक है, शेयर एंड केयर, अमेजिंग प्लेस, वेस्टवुड मॉल में। तो मैंने वहां पे लोगों से बात करके इतना सुना है कि जो हमारी पीछे की काउंसिल थी, कैरोलिन पेरिश, उन्होंने काम एक्चुअली बहुत किया मॉल्टन के लिए, जो जितने टर्म में वो रही हैं मेरे हिसाब से, उन्होंने काम काफी किया। एक यूथ हब डेवलपमेंट कर दिया, वहां के सेंटर्स को काफी साफ सुथरा कर दिया, पर उसमें अभी भी बहुत काम बाकी है, मतलब इट्स अ लॉट। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मॉल्टन इज योर फर्स्ट स्टॉप इन कनाडा, that's where it becomes a little issue. अच्छा, चलें, अभी हम कंटिन्यू तो करेंगे अपनी बात को फर्दर। मुझे लगता है कि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा जी, मनीष साहब, अब आप जरा हमें ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि सिटी ऑफ मिसिसागा के क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, एंड वेदर, चले मैं बाद में पूछती हूँ कि वार्ड 5 के उससे डिफरेंट है या वही हैं उनके भी challenges, because city of Mississauga is huge as compared to many other towns or cities in Canada. Yes, it is. तो I think उसके क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं जो अभी जो सबसे बड़ा इशू है, जो मेरे लिए तो सिर्फ अभी एक ही इशू है जिसपे मैं पूरी तरह सबसे पहले हथौड़ा मारना चाहूंगा, वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्राइम। क्योंकि आज की डेट में आप अपने घर में अगर सुरक्षित नहीं हो, सेफ नहीं हो, कनाडा जैसी कंट्री में रह के, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे फिर हम आए क्यों। ये अगर यही सब था तो जहाँ पे हम थे इन वेरी बैड सिचुएशंस, those were better. Why are we here? So that would be my first thing. Safety and security is the must. What do you think? Why? That's a big challenge right now for whole Canada or for Mississauga as well. Mainly Mississauga, or Ward 5 is the one that has the highest. तो क्या वजह है? वजह तो obviously मुझे लगता है उन्हीं से पूछनी पड़ेगी जो कर रहे हैं। मैं कर नहीं रहा, मुझे ये वजह नहीं, मुझे ये पता है, पर उन्हें रोकना है। मुझे ये पता है कि अब प्रॉब्लम यह है कि देखिए, जो हमारी वार्ड 5 की पॉपुलेशन के हिसाब से, अब हर सिटी के वार्ड को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से बजट, एक कॉस्ट दिया जाता है, चाहे सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ हो, स्कूल्स हो, वो अलग अलग बजट दिया जाता है। अब हर दूसरी वार्ड में भी सेम हिसाब है, उनको भी उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब हमारी वार्ड में प्रॉब्लम यह है कि हमारी वार्ड 5 जो है वो बाकी वार्ड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी वार्ड 5 जो है वो गेटवे टू कनाडा है। अब आप कनाडा में जब पहली बार लैंड करते हैं, और जैसे ईस्ट कोस्ट में लैंड करते हैं, ऑन्टेरियो में, तो आप पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। और पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? वार्ड 5 में है। मिसिसागा बाद में आता है, GTA बाद में आएगा, पहले तो आप वार्ड 5 में लैंड करेंगे। तो वार्ड 5 में से और एयरपोर्ट से जब आप निकलेंगे, आप चाहे ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे, साउथ जाएंगे, इधर उधर कहीं निकलने के लिए भी आप हमारे वार्ड के थ्रू से ही जाएंगे। अब क्या होता है, मॉल्टन की तरफ जो है वो ज्यादा ईस्ट की तरफ, फिर जो लोग निकलेंगे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, जो ईस्ट साइड की तरफ जाएंगे वो मॉल्टन को पार करके जाएंगे, जो वेस्ट की तरफ जाएंगे वो ब्रिटानिया वुड के एरिया उधर उस साइड पे पार करके जाएंगे। अब उससे होता क्या है कि पियर्सन एयरपोर्ट इंटरनेशनल पे डेली हजारों लोग लैंड करते हैं, राइट? एग्जैक्टली, हजारों, इंक्लूडिंग स्टाफ, एवरीबडी। तो आप सोचिए कितना ट्रैफिक मॉल्टन के थ्रू आ जा रहा है रोज, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका पैसा हमें पता ही नहीं मिलता है, नहीं मिलता, हमें पता नहीं। पार्टिसिपेशन फेडरल गवर्नमेंट की इसमें है, नहीं है? I don't know. I don't believe it's there. So all of this economic activity
you guys don't know anything about it. Well, in the sense, देखिए, क्योंकि क्या होता है, it's transitory ना, Mhm. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, it's a बिल्कुल। revolving door. तो Yeah. how do you keep track? It's very difficult. Mhm. अगर उसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है. लेकिन अब देखें, आपको लगता है कि उनकी वजह से ये जो ट्रांजिट हो रहा है, वहां से कोई प्रॉब्लमैटिक फिगर्स जो हैं वो इश्यूज जनरेट कर रही हैं फॉर वार्ड 5? जहां पे भीड़ होगी, जहां पे ज्यादा तंगी होगी, और वहां पे उसी एक ही एरिया में वो सारी तंगी जो होगी, उन सब लोग एक ही नौकरियों की तरफ जाएंगे, उन्हीं घरों की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको उसी एरिया में रहना है. अब जब आप नॉर्मली कहीं से भी दुनिया में आते हो, जिस कंट्री में आप लैंड करते हो, आप या तो जब आप पहले सेटल होते हो 1-2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, या तो आप एयरपोर्ट के आसपास ही सेटल होते हो, या तो फिर आप डाउनटाउन जाते हो, जो सिटी का सेंटर होता है. राइट, दैट्स व्हेन वी एज इमिग्रेंट्स कम टू द कंट्री. दैट्स व्हाट वी डू. वी आइदर गो टू द नियरेस्ट हब नियर द एयरपोर्ट, और वी गो to downtown. Okay, that's very interesting to notice कि आपको लगता है कि जो न्यू कमर्स हैं, एक लिहाज से जो कंट्री में एंटर हो रहे हैं, they might be problematic. No, I'm not saying that. But no, you're misunderstanding. Because they are here. No. Okay, so, you're trying to find. please clarify. You're trying to point a finger for blame. No. Yes. No, you're saying that who's causing this? Right. It's not who. This is all of us. Okay. We are causing this. ये हमने किया है. If crime is at its highest, it's because of me, you, all of us. Right. Why? Because the biggest problem is, what do we not do in this country that we should do? We don't vote. ये प्रॉब्लम जो वोट 5 की प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो मैं तो अब आया हूं ना यहाँ पे. मेरे से पहले मैं 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वोट 5 का देख चुका हूँ. 20 साल में almost 100,000 people approximately live in that both areas. There's maximum between 6 to 8,000 people that come out to vote. Okay. और उस 8,000 में से 6,000 वोट अच्छा, आपके ज़हन में क्या सोल्यूशन है? चलें, लोगों को वोट करना पड़ेगा. नहीं, लेकिन इस मसले का सोल्यूशन क्या है? लोगों को वोट करना पड़ेगा. नहीं, वोट तो करके बंदे को लाएंगे. जैसे आपको अगर वोट करते हैं, आप आएंगे, तो व्हाट सोल्यूशन यू ऑफर for this big issue, which is really recently it's out of control. Out of control. Yeah. So I have a program which I'm calling a community inclusive patrol program. Okay. जो होगा कि जिस neighborhood में, जिस एरिया में आप रहते हैं, और अगर आपका cul-de-sac कि आपका एरिया में 50, 70, 80 जितने घर होंगे, अब क्या होता है कि देखिए, आप घर में रहती हैं जी, तो आपके सारे लोग घरों में नहीं रहते. मैं कॉन्डो में रहता हूँ. Okay. तो I'm talking between a condo. तो आप घर में रहती हैं, तो आपके जो नेबर हैं, आपके जो 10वां 8वां या जैसे 20th हाउस होगा, आप जानते हैं उस घर में कौन रहता है? नहीं. उनका टेलीफोन नंबर, नाम कुछ नहीं. और ये तो मेरा प्रोग्राम पहले ये होगा कि एज अ सिटी इनिशिएटिव हम लोग उन एरियाज में जाके सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हर रेजिडेंट के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको पता हो कि यहाँ कौन रहता है, आपको पता हो आपके पीछे कौन रहता है. और क्या होगा उससे, दूसरा मैं चाहूंगा कि हम एक we put CCTV cameras for neighborhood watches. Okay. That can be monitored. And I want that from the community we get 10 maybe 15 volunteers जो as a surveillance वॉच करेंगे उस सीसीटीवी कैमरा को कि कौन आ जा रहा है. अब उसका साथ में आपका जो कम्युनिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम होगा, वो एक पेट्रोल सिस्टम के साथ अटैच्ड होगा. सिक्योरिटी सेफ्टी पेट्रोल होते हैं, नॉट पुलिस. पुलिस को तो आप वैसे अगर क्राइम होता है तो राइट ऑफ वे इन्फॉर्म करना ही करना है. दैट्स द नेचुरल. पर उसको करने के बाद हम जानते हैं कि पुलिस का टाइम पे आना, उस क्राइम का होना, आजकल वो मैच नहीं हो रहा. और वो इसलिए क्योंकि क्राइम रेट इतना बढ़ गया और पुलिस हमारी इतनी है, तो इट्स नॉट इवन फेयर ऑन देम. और मैं सबको यही कहता हूं कि काफी लोग पुलिस को ब्लेम करते कि आती नहीं, ये नहीं करते. पर देखिए, जैसे जो घर होते हैं ना, घरों के बाहर ये नहीं लिखा होता कि ये पुलिस वाले का घर है. तो जैसे आपके घर में या मेरे घर में अगर चोरी तो हो रही है, उसके भी हो सकते हैं. एग्जैक्टली राइट. लेकिन ये भी मैं आपको, बहुत अच्छी बात है कि आप कम्युनिटी एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बट एट द सेम टाइम, डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड इम्प्रूव देयर सर्विसेज, नंबर 1. नंबर 2, पर्सनल की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि उनका जो रोल है सोसाइटी में वो भी तो वो प्ले करें ना. एब्सोल्युटली. नहीं देखिए, और पुलिस अपना रोल मेरे हिसाब से करती है, प्ले करती है. पर देखिए, मैं वही तो आपको, मैं इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है. जैसे आपने कहा फंडिंग हमें और दें ताकि हमारे पास और पुलिस, तो पैसे चाहिए. अब मैं उन्हीं पैसों की, अब क्या होता है, अगर हम पैसे उनसे और मांगते हैं, वो पैसे कहां से लाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट पैसे कमाते नहीं है. गवर्नमेंट का काम है जो पैसे टैक्स में से हम लेते हैं उनको मैनेज करना उस तरीके से ताकि जो टैक्स आप दे रहे हो उसकी वैल्यू आपको मिले सर्विसेज में. अभी वो बैलेंस नहीं है. अभी इंसानों को ये लगता है हम इतना टैक्स दे रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग वर्थ व्हाट आई एम पेइंग. सो व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बैलेंस दैट इकोनॉमिक्स. नाउ फॉर वार्ड 5
वो economic balance that I want to initiate or propose and look at is okay, because we are, like I said, the gateway to Canada. So we are servicing way more people than any other ward. Which and means, accordingly, your share should be with respect to funding, with respect to resources. Exactly. It should be shared. The federal government should share, provincial should share, and municipal, of course. Apna kar hi rahi hai, right? So I feel that'll be one step towards that. That'll help us. पर अगेन ये पैसा आना, फंडिंग मिलना, फंडिंग को इम्प्लीमेंट होना, ये वो पॉलिटिकल बातें हैं जो कहने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ जी, आई एम गोना गेट यू $100 million more for the police. Yes, I will fight for it. पर when will that implement and actually show actual fruit? प्रॉब्लम तो आज है ना, चोरियां तो अभी हो रही हैं, लोगों के घरों के अंदर तो अभी वो तोड़ रहे हैं ना, तो अभी प्रॉब्लम को सोल्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लुकिंग एट इट, आई एम नॉट लुकिंग एट मनी और फंडिंग दैट बी द फाइनल सॉल्यूशन. राइट अवे आई वांट टू क्रिएट दैट इंक्लूसिव कम्युनिटी प्रोग्राम, सो वी एज नेबर्स and as residents watch out for each other. Okay, do you have any example in your mind for that community inclusive program? या आप कैसे उसको भी implement करेंगे, कैसे सारे लोगों को motivate करेंगे to participate in this activity? So like I said, I would initiate a city based program that would go collect everybody's information. And then वहाँ से 10-15 volunteer लेके to create an internal committee of them. And then सारी information हर resident के पास होनी चाहिए, ताकि जैसे मैंने आपको कहा ना, तो पहला तो स्टेप वो होगा. First we need to become inclusive. पहले let's get to know who our neighbors are, who everybody is. क्योंकि ये कनाडा वो था जो होता था ऐसा. Now I'm very much concerned about that, because you're talking about sharing the information with your neighbors, like 10 houses down the road. And first off, the trust on your community need to be developed. So I am very much uncomfortable giving my contact details to someone who I do not know and who lives down the road. What if my situation is more vulnerable while sharing this information? So creating that kind of environment कि जहाँ पे trust की फिजा हो, वो मैं समझती हूँ सबसे पहली जरूरी है कि हमारे neighbors में कौन लोग हैं और क्या हम उन पे trust कर सकते हैं या नहीं कर सकते. आप सोशल मीडिया पे हैं? सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत किया. आप है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है. Yes, of course, these kinds of things. तो देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये डे एंड एज वो है कि मुझे जरूरत ही नहीं है वो सब करने की, आपका पता करने की कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कहाँ रहती है, वो सब होता है. But I don't share those things. But that's why but what happens is when you have family, your family knows ना. अब सोचिए, अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं एक एरिया में, तो फैमिली तो जानेगी ना एक दूसरे को, और फैमिली प्रोटेक्ट भी करेगी एक दूसरे को. जब तक आप वो तभी इसको इंक्लूसिव community patrol program, we have to create that. अगर वो create नहीं होगा, जो इंसान उसमें participate नहीं करना चाहेगा, वो फिर कल को अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो कल किसको ब्लेम करेंगे? They have to blame themselves only. And that's why it's very important. तो जैसे हक आपको प्रोटेक्ट अपनी चीज अपनी फैमिली का करने का होता है, तो वैसे हर फैमिली को होता है. और हमें अगर फेथ और ट्रस्ट हम अपने पड़ोसियों में, अपने जान पहचान वालों में नहीं बनाएंगे, और मैंने कहा वही तो मैंने सीखा when I grew up in India. और जैसे when you also must have been back home, that's what we learned, we trusted, right? और देखिए, और उसमें आपको अगर जब आप ये करेंगे ना, अगर उसमें कुछ फल जो है वो सड़े हुए हैं, वो ठीक नहीं भी हैं, वो निकल के बाहर आ जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि वो 2 घर वो थोड़े ठीक नहीं है. तो फिर क्या होता है कि जो अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो these are houses I have to be careful. क्योंकि जो मुझे कंसर्न है, आपकी बात में बहुत वजन है और शायद यही तरीका होगा कि हम अपनी कम्युनिटीज को सेव कर सकें. मेरा कंसर्न ये है कि बहुत सारे घर जो है ना वो रेंटल होते हैं, रेंट में लोग आते जाते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके साथ उस तरह से सारे, अगर तो कोई हाउस होल्ड्स हैं जिनके अपने घर हैं और वो वहीं पे रह रहे हैं, that's a different story, because they have been living over there for 10 years or 20 years, they can build that kind of network and connections. लेकिन ये जो रेंटल प्लेसेस हैं, वहां पे ये चैलेंज शायद ज्यादा बड़ा होगा कि कैसे वो इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट की जाए. बट आई रियली लाइक द आइडिया. Even in the rental properties, it's absolutely nothing. Because क्या होता है, if you're renting, you have a lease agreement. You're there for 1 year. And wouldn't you, as a resident living in an area, want to know who's a renter and who's a you'd prefer it, right? And then see, जो rent करने आ रहा है, वो most probably country में नया आया. तो they तो want to integrate. वो तो आए हैं integrate करने. तो फिर उनको मौका क्यों ना दिया जाए, right? और उससे obviously trust करना चाहिए. See, faith is I believe there's only, you have 2 choices in life. You have faith or you have fear. या तो आप विश्वास रखो या आप डर रखो. सही आप राइट. तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि लेट्स चूज फेथ. आई होप कि आप ये वाला मॉडल वहां पे क्रिएट करें, वार्ड
5 में अपनी विनिंग के बगैर भी और विनिंग के Yes, साथ भी। absolutely. तो और उसके बाद उसको रेप्लिकेट किया जाए इन अदर सिटीज। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग दैट। Thank you. तो वंडरफुल, दैट्स गुड। और आप क्या समझते हैं कि वार्ड 5 का कोई ऐसा चैलेंज है जो सिटी ऑफ मिसिसागा से थोड़ा सा हटके है, या जैसे आपने 2 एरियाज बताए अभी आप बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों एरियाज के इवन विद इन वार्ड 5 द इश्यूज आर डिफरेंट, challenges are different, Yes. and how would you address different people in the same ward I think and their challenges? क्या होता है कि there's different zones need different kind of attention. Yeah. तो क्या होता है कि वार्ड सेपरेटेड ऐसे है और जियोग्राफिकली भी ऐसे सेपरेटेड है कि इट एक्चुअली डजंट लेट देम ब्लेंड टुगेदर। मैं दोनों को ब्लेंड भी नहीं कर सकता। तो दोनों की सिचुएशंस भी प्रॉब्लम्स भी अलग ही Requirements होंगे। different है। तो क्या होता है, कोई बात नहीं, क्या होता है घर में एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, डजंट मैटर। जितने बच्चे होते हैं आपको उन बच्चों को उस तरीके से हैंडल करके और जो उनको उस वक्त चाहिए आपको देना पड़ता है। और वही तो दैट्स व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ दिस जॉब, दैट यू गेट टू वर्क डायरेक्टली एंड से आपको क्या चाहिए, ठीक है मैं ये आपको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बात कर सकते हैं। Right? अच्छा, चलें जी, फिर ये बताएं, हमारा प्रोग्राम एंड होने को है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, व्हाई पीपल शुड गिव यू वोट except your looks? Thank you so much. I think why people should vote for me is because if they're voting for me, they're voting for themselves. मैं वही हूँ जो जिन दरवाजों पे मैं नॉक करता हूँ, जो दरवाजे के पीछे हैं, जिनको जो डर है, जो फिक्र है और जो स्ट्रगल्स रही हैं उनकी, वो मेरी स्ट्रगल्स भी रही हैं। मुझे बस अब वो सिचुएशन मेरी लाइफ की आ गई है कि मैं कर सकता हूँ, वो अगर कर सकते तो वो सारे करते। जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, अगर वो कर सकते वो करते। पर अभी ऊपर वाले ने मौका मुझे मिला, so I'm doing it. So I guess I have to take the plunge for this one if I get the opportunity. And the other thing is, I tell everybody at the doors that जो भी आपके पास आएगा ये नौकरी मांगने, वो अपना वोट मांगने, आप उनसे बस एक सवाल पूछना कि आपके लिए इस काउंसलर की जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है। मैं आपको बोलता हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मेरे लिए ये जॉब इज लाइक आई सेड एज अ सोल्जर। तो इट्स वेरी सिंपल। For me, this job is to be like a soldier to serve you. That's it. अब दूसरे लोग क्या जवाब देते हैं मुझे ये नहीं पता, तो मैं इसलिए सबसे कहूंगा कि अगर मुझे मौका दें तो मुझे अपना एक सोल्जर और अपना एक सेवक बनाने का मौका दें। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। All the best, then. Thank you so much. Thank you so much. अभी आपने हमारी मनीष सानी के साथ गुफ्तगू सुनी। Thank you for watching, and I hope you will stay with us because we are going to bring another show next week. Related to the same by-elections, either from the mayor by-elections or from someone who is representing the councillor position at Ward 5. Thank you so much for having us.